যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণ, নাম আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছি। একাদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 212 থেকে কন্টিনিউ করব। আজকে 212 থেকে 243 অব্দি করব, আর যদি সময় থাকে আরো করব। 212 নম্বর শ্লোক। হেন কালে রামানন্দ আইলা প্রভু স্থানে, हेलो काले रामानंद आयला प्रभु स्थाने, প্রভু মিলাইলো তারে সব বৈষ্ণব গণে। प्रभु मिलाए लो तारे सब वैष्णव गणे। तो महाप्रभु रामानंद राय से आगे भी मिला था। लाइक रामानंद राय जब पुरी में वापस आया, लेकिन अकेला मिला था। रामानंद राय से अकेला मिला था, वार्तालाप हुआ था। लेकिन अभी महाप्रभु रामानंद राय को सबके साथ, अपने सब पार्षद के साथ इंट्रोड्यूस करा रहे। সেই সময় রামানন্দ রায়ও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এলেন এবং মহাপ্রভু সমস্ত বৈষ্ণবদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। সবা লইয়া গেল প্রভু জগন্নাথ লয়, সবা লইয়া গেল প্রভু জগন্নাথ লইয়া। জগন্নাথ লয়, জগন্নাথের আলয়। জগন্নাথ লয় কোথায় সুচারু গুপ্ত মাতাজি? জগন্নাথ মন্দির। হ্যাঁ, কারেক্ট। সবা লইয়া গেল প্রভু জগন্নাথ লয়, সবা লইয়া গেল প্রভু জগন্নাথ লয়। কীর্তন আরম্ভ তথা কইল মহাশয়, কীর্তন আরম্ভ তথা কইল মহাশয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাদের সকলকে নিয়ে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে গেলেন এবং সকলকে নিয়ে ভগবানের নাম কীর্তন সংকীর্তন আরম্ভ শুরু করলেন। সন্ধ্যা ধূপ দেখি আরম্ভিলা সংকীর্তন, संध्या धूप देखी और संध्या कीर्तन वर्णना। হ্যাঁ, সন্ধ্যা ধূপ দেখি আরম্ভিল সংকীর্তন, संध्या धूप देखी आरंभ संकीर्तन। পরিছাসি সবারে দিল মাল্য চন্দন, परीक्षा देवी सभी धीरे दाने चंदन माला पण। सॉरी प्रभु रंग। জগন্নাথ দেবের ধূপ আরতি দর্শন করে তারা সংকীর্তন করতে আরম্ভ করলেন। তখন পরিচয় এসে, পরিচয় वो इंस्पेक्टर जो था, जो काशी मिश्रा के साथ जा रहा था ना, सब कुछ आयोजन कर रहा था, পরিচয় এসে তাদের সকলকে মালা ও চন্দন দিলেন। जगन्नाथ देव का महाप्रसाद माला सबको दिया और सबको चंदन, ये देखा अपने फोरहेड में लगा देता है चंदन ऐसे ऐसे करके। চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করেন কীর্তন, চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করেন কীর্তন। মধ্যে নৃত্য করে প্রভু সচির নন্দন, मध्य नृत्य करे प्रभु सचिर नंदन। चारिदिके चारी संप्रदाय माने वो प्रामाणिक संप्रदाय नहीं, 4 ग्रुप। जितना बहुत लोग था ना, बंगाल से गए थे, तो उनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया। नहीं तो पूरा अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। ये महाप्रभु दिखा रहे कि हम लोग जब नगर कीर्तन करेंगे तो कैसा करना चाहिए, ग्रुप में करना चाहिए। चारों अलग अलग डिवाइड करके, तो चारों 4 जगह फैल गया और बीच में कौन है? सेंटर में गौरांग महाप्रभु। চারদিকে 4টি সম্প্রদায় কীর্তন করছিল এবং মাঝখানে সচিন নন্দন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নৃত্য করছিলেন। অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে 32 করতাল, अष्ट मृदंग बाजे 38 करताल, 32 করতাল। হরিধ্বনি করে সবে বলে ভালো ভালো, हरिध्वनि करे सबे बोले भालो भालो। 4টি দলে 8টি মৃদঙ্গ এবং 32 করতাল বাজছিল। ओके, सो एक एक दल में कितना? 2 मृदंग और 8 करताल ना, ऐसे ही हुआ ना? 2 मृदंग 8 करताल। सो करताल इस टू मृदंग कितना होना चाहिए? 1:4। समझ में आया सबको? हिरणमय प्रभु, अगर एक हो गया है तो उनके साथ 4 करताल होना चाहिए, ऐसे समझ में आ रहे। এবং 4টি দলে 8টি মৃদঙ্গ এবং 32টি করতাল বাজছিল এবং তাদের সেই কীর্তন শুনে সকলে হরিধ্বনি দিতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন খুব ভালো, খুব ভালো। কীর্তনের ধ্বনি মহা মঙ্গল উঠিল, কীর্তনের ধ্বনি মহা মঙ্গল উঠিল। চতুর্দশ লোক ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল, হরিব। চতুর্দশ লোক ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল। সে সংকীর্তনের ধ্বনির প্রভাবে মহামঙ্গলের উদয় হলো এবং সেই
সংकीর্তনের ধ্বনিতে ব্রহ্মাंडेर चतुर्दश माने 14 चतुर्दश भुवन भरे उठलो। री बोल। आप समझ सक रहे इतना बड़ा ग्रुप महाप्रभु बीच में नृत्य कर रहा है, इतना करताल बज रहा है, इतना मृदंग बज रहा है, सब जगन्नाथ मंदिर के अंदर में। क्या साउंड हुआ होगा राजेश प्रभु, हाँ क्या साउंड, और इतना साउंड कि 14 भुवन भेद करके, इतना साउंड 14 भुवन भेद करके भरे उठ लो एकदम। प्रभु जी अभी तो मंदिर में नहीं गए शायद, अभी तो दे आर आउटसाइड ओनली। आउटसाइड संध्या धूप देखी, संध्या आरती देखा ना इन लोग। जगन्नाथের धूप आरती दर्शन करे तारा संकीर्तन करते आरंभ करलेन, भगवान का धूप आरती देखा ना, संध्या आरती। कीर्तन आरंभे प्रेम उथली चलिल, कीर्तन आरंभे प्रेम उथली चलिल, নীলাচল বাসী লোক ধাইয়া আইলো, নীলাচল বাসী লোক ধাইয়া আইলো। সংকীর্তন যখন শুরু হলো তখন ভগবত প্রেমে চতুর্দিক প্লাবিত হলো এবং সমস্ত জগন্নাথপুরীর আদিবাসীরা সেখানে ছুটে এলেন। क्या মানে একদম ম্যাগনানিমাস কীর্তন हो रहा है अंदर जगन्नाथ मंदिर में। कीर्तन देखी सবার মনে হইল চমৎকার, कीर्तन देखी सबार मने हेले चमत्कार, কভু নাহি দেখি হইছে প্রেমের বিকার, कभू नाही देखी एछे प्रेमेर विकार। সেই কীর্তন দেখে সকলে চমৎকৃত হলেন এবং তারা সকলে বলতে লাগলেন কোথাও আমরা এরকম প্রেমের বিকার দেখিনি। তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেরিয়া, তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেরিয়া, প্রদক্ষিণ করি বুলেন নর্তন করিয়া, প্রদক্ষিণ করি বুলেন নর্তন করিয়া। তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নৃত্য করতে করতে জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। মানে সার্কামঅ্যাম্বুলেট इंग्लिश में बोलते हैं ना, প্রদক্ষিণ মানে কি বলে এটাকে, পরিক্রমা। জগন্নাথ দেবের মন্দির ইজিলি পরিক্রমা করা যায়, চারিদিকে সব ছোট ছোট মন্দিরগুলো আছে, মাঝখানে প্রপার প্যাসেজ আছে পরিক্রমা। আপনারা কারা কারা জগন্নাথ দেবের মন্দির পরিক্রমা করেছেন? ইয়া ভেরি নাইস। আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদায়, आगे पाछे गान करे चार संप्रदाय, আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ রায়, आचार्यर काले रहे नित्यानंद राय। মন্দির প্রদক্ষিণ করার সময় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আগে ও পিছনে 4টি সম্প্রদায় কীর্তন করছিল এবং নৃত্য করতে করতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন ভাবের আবেশে আছাড়কে করছিল তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাকে ধরছিলেন। ওকে, অশ্রুপুলক কম্পস্বেদ গম্ভীর হুঙ্কার, अश्रुपुलक कंपस्वेद गंभीर हुंकार, প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার, प्रेमेर विकार देखी लोके चमत्कार। মহাপ্রভুর শ্রী অঙ্গে অশ্রু পুলক কম্পস্বেদ গম্ভীর হুঙ্কার ইত্যাদি প্রেমের বিকার দেখা দিচ্ছিল। তা দেখে সমস্ত লোকেরা চমৎকৃত হলেন অষ্টসাত্বিক বিকার দেখে। পিচকারী ধারা যিনি অশ্রু নয়নে, পিচকারি ধারা যিনি অশ্রু নয়নে, চারিদিকের লোক সব করে সিনানে, চারিদিকে লোক সব করে সিনানে। পিচকারী ধারার মতো তার দু চোখ দিয়ে প্রেমশ্রু নির্গত হচ্ছিলেন। সেই প্রেমশ্রুতে চারিদিকের লোকেরা স্নাত হলেন। সবার মানে গা ভিজে গেল, এত মহাপ্রভু কন্দন হচ্ছিল। বেড়া নৃত্য মহাপ্রভু করি কতক্ষণ, बेड़ा नृत्य महाप्रभु करी कतक्षण, মন্দিরের পাছে রহি করে কীর্তন, मंदिरे रे पाछे रही करे रे कीर्तन। মন্দিরের প্রদক্ষিণ করে কিছুক্ষণ নৃত্য করার পর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মন্দিরের পিছন থেকে কীর্তন করতে লাগলেন, পিছনেই থেকে कीर्तन करते लगे। ओके, देन पीछे जाकर कीर्तन किया। तो ये चैप्टर का क्या नाम है अशोक प्रभु? ओ अच्छा, ये सुचार गोपी माता जी, ये लीला महाप्रभु का कीर्तन बेड़ा। क्या लिखा है हिंदी में? महाप्रभु का कीर्तन बेड़ा। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु बैरा कीर्तन लीला। तो ये बैरा कीर्तन का क्या अर्थ है शशि माता जी? बहुत बड़ा कीर्तन लीला। रॉन्ग। इंद्राणी माता जी?
ওই যে পরিক্রমা করছে, ঘুরছে। হিরণময় বেড়া জওয়ানদের বাঁধা। प्रभु। प्रभु विदिन मतलब मंदिर का बाउंड्री का अंदर। ओके, सो बेरा बेरा माने फेंसिंग, फेंसिंग है ना, फेंसिंग। तो महाप्रभु মাঝখানে ছিল, চারদিকে কে ছিল? हरे कृष्णा प्रभु। हरि बोल। ये शक्तिमान अद्वैत प्रभु फ्रॉम বৃন্দাবন। বেড়া কীর্তন বলতে আমরা যেটা বুঝি কোনো নির্দিষ্ট একটি জায়গাকে কেন্দ্র করে চারপাশে নাম সংকীর্তন করা। বেড়া কীর্তন বলতে আমরা এটা বুঝি। মহাপ্রভু মাঝখানে নৃত্য করছিলেন আর চারদিকে তাকে সম্প্রদায়ের গার্ডের মতো সার্কেল করে একটা কেন্দ্রবিন্দুকে সার্কেল করে চারপাশে ঘোরা, নৃত্য করা এবং নাম সংকীর্তন করা। ইয়েস, বেড়া কীর্তন। ঠিক আছে। ভোগ কর নৃত্য করি প্রভু স্থির হইলা। আচ্ছা, চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চ স্বরে গায়। চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চ স্বরে গায়। মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে, মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌর রায়। মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌর রায়। চারিদিকে চার সম্প্রদায় উচ্চস্বরে গান করছিলেন এবং মাঝখানে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাণ্ডব নৃত্য করছিলেন। বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হইলা। বহুখণ্ড স্থির হইলা প্রভু নৃত্য করা। চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা। চারে মহন্ত আগে যায়, নাচিতে আগে গেলিলা। বহুক্ষণ নৃত্য করার পর স্থির হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু চারজন महंतों नाचते आदेश दिले। अब ये क्या लग रहा है आप लोग को, ये महंत कौन है? एक संप्रदाय नाचे नित्यानंद राय। एक संप्रदाय नाचे नित्यानंद राय। अद्वैत आचार्य नाचे आर संप्रदाय। अद्वैत आचार्य नाचे आर्य संप्रदाय। आर्य संप्रदाय नाचे पंडित बक्रेश्वर। आर्य संप्रदाय नाचे पंडित बकेश्वर। श्रीवास नाचे आर्य संप्रदाय भीतर। श्रीवास नाचे आर्य संप्रदाय भीतर। सो ये बेरा कीर्तन में चार ग्रुप था ना, चार संप्रदाय जिसको बोला गया है। चार ग्रुप का लीडर कौन कौन है? एक एक ग्रुप का जैसे हाँ लीडर कौन है? एक लीडर है नित्यानंद प्रभु, और एक ग्रुप का अद्वैत आचार्य प्रभु, और एक ग्रुप का पंडित बक्रेश्वर पंडित, और चौथा का श्रीवास ठाकुर। एक সম্প্রদায় নিত্যানন্দ প্রভু নাচতে লাগলেন এবং অন্য সম্প্রদায় অদ্বৈত আচার্য প্রভু নাচতে লাগলেন। আরো এক সম্প্রদায় বক্রেশ্বর পণ্ডিত নাচতে লাগলেন এবং অন্য সম্প্রদায় শ্রীবাস ঠাকুর নাচতে লাগলেন। মধ্য রহে মহাপ্রভু করেন দর্শন। মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন। তাহা এক ঐশ্বর্য তার হইল প্রকটন। তাহে ঐশ্বর্য তার হইল প্রকটন। যখন এই নৃত্য কীর্তন হচ্ছিল তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেই চার সম্প্রদায়ের মাঝখান থেকে তা দর্শন করতে লাগলেন এবং তখন তার একটি ঐশ্বর্য প্রকাশ হয়েছিল। চারিদিকে নৃত্য গীত করে যতজন। চারিদিকে নৃত্য গীত করে যতজন। সবে দেখে প্রভু করে আমারে দর্শন। সবে দেখে প্রভু করে আমারে দর্শন। চারদিকে যারা যারা নৃত্য গীত করছিলেন তাদের সকলের মনে হলো মহাপ্রভু আমায় দেখছেন। हरि बोल। सिमिलर क्या लग रहा है? सिमिलर जैसे प्रभु जी जैसे ना वो जब रास चल रहा था तो सबके साथ वो सब गोपी लोग के साथ प्रभु थे, सबको लग रहा था जी, और उसी तरह इसमें भी लग रहा है। चारी जने नृत्य देखते प्रभुर अभिलाष। चारी जने नित्य देखे, चारी जने नित्य देखते प्रभुर अभिलाष। সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য প্রকাশ। সেই অভিলাষে করে ঈশ্বর প্রকাশ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চারজনের নৃত্য দেখতে অভিলাষ হলো এবং সেই অভিলাষ অনুসারে তিনি কিছু ঐশ্বর্য প্রকাশ করলেন। দর্শনে আবেশ তার দেখি মাত্র জানে। দর্শনে বিলাস দেখি মাত্র জানে। মাত্র জানে। কেমনে চৌদিকে দেখে ইহা নাহি জানে। কেমন চৌদিকে দেখে এহ নাহি জানে। যারাই তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখছিলেন বা দেখেছিলেন তারাই বুঝতে পারছিলেন যে তিনি কোনো অলৌকিক লীলা বিলাস করছেন। কিন্তু তারা বুঝতে পারলেন না কিভাবে তিনি চারদিকে দেখছিলেন। হরি বল।
मैंने बाहर जो है, बाहर का लोग जो देख रहा था, महाप्रभु बीच में है और महाप्रभु चारों ओर, यहाँ भी दिख रहा है, वहां भी दिख रहा है, वहां भी दिख रहा है, कैसे चारों ओर एक साथ एक ही टाइम में दिख रहे हैं। पुलिन भोजने जैनो कृष्ण, सभी लोग देख पा रहा था प्रभु जी कि महाप्रभु चारों तरफ देख रहे हैं। हाँ ये तो लिखा हुआ है। केमन देखिए, देखे यहाँ ना ही जाने, कैसे चारों ओर देख रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक प्रभु जी वो जो ग्रुप्स थे ना, उनमें जो थे उनको देख रहे, उनको तो लग रहा है कि महाप्रभु मुझे देख रहे हैं। यहाँ लिख रहा है दर्शन आगे देखी मत हो जाने। पुलिन भोजने जेनो कृष्ण मध्यस्थाने, पुलिन भोजने जेन कृष्ण मध्यस्थाने, चौदिकेर शाखा कहे আমারে নেহানে, চৌদিকের শাখা কহে আমারে নিহানে। বৃন্দাবনে যমুনার তীরে তার সখাদের মাঝখানে বসে কৃষ্ণ যখন বনভোজন করতেন, বনভোজন মানে বনভোজন কোন? পিকনিক। हाँ পিকনিক, পিকনিক का বেঙ্গলি है বনভোজন। তখন তার চারদিকে সমস্ত সখরা বলতো কৃষ্ণ কেবল আমাকে দেখছে। ঠিক তেমনি সেই সংকীর্তনের সময় সকলেরই মনে হচ্ছিল যেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কেবল তাকেই দেখছেন। নৃত্য করিতে যাই আইসে সন্নিধানে, নৃত্য করতে সেই আইসে সমিধানে, মহাপ্রভু করে তারে দৃঢ় আলিঙ্গনে, মহাপ্রভু করে তারে দৃঢ় আলিঙ্গন। নৃত্য করতে করতে কেউ যখন সেই চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে আসছিলেন, মহাপ্রভু তখন তাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করছিলেন। प्रभु जी ये चारों लोग के सभी, जो जितना लोग थे सभी को, जो नृत्य करते करते महाप्रभु के पास आ रहा था, ये लिखा नहीं लीडर या फॉलोअर, जो भी आ रहा था तो महाप्रभु आलिंगन कर रहा था। महानृत्य महाप्रेम महासंकीर्तन, महानृत्य महाप्रेम महासंकीर्तन, देखी प्रेमावेशे भाषे नीलाचल जन, देखी प्रेमावेशे भाषे नीलाचल जन। সেই মহান নৃত্য মহাপ্রেম সংকীর্তন দর্শন করে প্রেমাবেশে সমস্ত নীলাচল বাসীরা আনন্দ সাগরে ভাসছিলেন। হরি বল হরি বল। গজপতি রাজা শুনি কীর্তন মাহাত্ম্য, गजपति राजा सुनी कीर्तन महत्व, অট্টালিকা চড়ি দেখে সগণ সহিত, अट्टालिका चढ़ी देखे स्वगण सहित। সেই সংকীর্তনের মাহাত্ম্যের শ্রবণ করে মহারাজ প্রতাপরুদ্র তার আপন জনদের সঙ্গে নিয়ে প্রসাদের চূড়ায় আরোহণ করে সেই নৃত্য কীর্তন দেখতে লাগলেন। ওই ফির সে ব্যালকনি মে কীর্তন দেখিয়া রাজার হইল চমৎকার, कीर्तन देखिला राजा होइलो चमत्कार, প্রভুকে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার, प्रभु के मिलिते उत्कंठा बाढ़िलो अपार। এই কীর্তন দেখে রাজা চমৎকৃত হলেন এবং তার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার উৎকণ্ঠা অনন্ত গুণ বর্ধিত হলো। और बढ़ गया eagerness। কীর্তন সমাপ্তে প্রভু দেখি পুষ্পাঞ্জলি, कीर्तन समाप्ते प्रभु देखे पुष्पांजलि, সর্ব বৈষ্ণব লইয়া প্রভু আইলা বাসা চলি, सर्व वैष्णव लैया प्रभु आइला वासा चली। সেই সংকীর্তন যখন সমাপ্ত হলো তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবের পুষ্পাঞ্জলি দর্শন করলেন। তারপর সমস্ত বৈষ্ণবদের নিয়ে তিনি তার বাসস্থানে ফিরে গেলেন। পরিচ্ছা আনিয়া দিল প্রসাদ ও বিস্তার, माता जी अनम्यूट करिए। चारों माता जी नहीं हो रहा, हाँ हो गया। পরিছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তার, সবারে বাটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর, সবারে বাটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর। মন্দিরের পরিচ্ছা তখন প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ এনে দিলেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং সেই প্রসাদ ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করলেন। সবার तो अभी अनम्यूट नहीं हो रहा गुरुजी। अच्छा ठीक है, कोई कुछ आवाज तो नहीं आ रहा है इससे। तो देखिए उसीलिए हम बताए तो वो श्रील प्रभुपाद को एक दिन भक्त लोग पूछा, श्रील प्रभुपाद आप क्या चाहते हैं हम लोग से? श्रील प्रभुपाद क्या बोला, हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत डांसिंग कीर्तन करिए, बहुत डांसिंग कीर्तन करिए। अच्छा, और जब आप लोग टायर्ड हो जाएं फिर क्या करें?
आकर प्रसाद ग्रहण करे और फिर से डांसिंग कीर्तन करे। वही हो रहा है ना यहाँ, नृत्य कीर्तन और फिर जब टायर्ड प्रसाद। कितना सुंदर है ना लाइफ। सबारे विदाय दिलो करिते शयन, सबरे विदाई देते करिले शयन, এই মতো লীলা করে সচির নন্দন। এই মতে লীলা করে সচির নন্দন। তারপর তিনি শয়ন করার জন্য সকলকে বিদায় দিলেন। এইভাবে শ্রী সচির নন্দন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার লীলা বিলাস করেছিলেন। रियली एक साल में अगर 4 महीना ऐसा बीते तो कितना अच्छा होगा ना। हाँ, भगवान के साथ पुरी में। हरि बोल। যাবো তো আছিলা সবে মহাপ্রভু সঙ্গে, যাবতা ছিলা সবে মহাপ্রভু সঙ্গে, প্রতিদিন এই মতো করে কীর্তন রঙ্গে। প্রতিদিন এই মত করে কীর্তন রঙ্গে। যখন সেই সমস্ত ভক্তরা জগন্নাথপুরীতে এসে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন, তখন প্রতিদিন তারা এইভাবে মহা আনন্দে সংকীর্তন লীলা বিলাস করেছিলেন। হরি বল, হরি বল, হরি বল। এই তো কহিল প্রভুর কীর্তন বিলাস, এই তো কহিল কীর্তন বিলাস, যেই ইহা শুনে হয় চৈতন্যের দাস। যেই ইহা শুনে হয় চেতনার দাস। তো ये चैप्टर का कथाफल क्या है? कथाफल এইভাবে আমি মানে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তন লীলা বিলাস বর্ণনা করলাম এবং আমি সকলকে আশীর্বাদ করি এই লীলা যেই শ্রবণ করবে সেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দাস হবে। হরি বল। बोले कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय जय जय। आशीर्वाद कर रहे हैं, सबको आशीर्वाद कर रहे कविराज गोस्वामी। सब आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। श्री रूप रघुनाथ पदे जारास, श्री रूप रघुनाथ पदे जारास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। শ্রীল রঘুনাথ, শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীপাদ পদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে এবং তাদের কৃপা প্রার্থনা করে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আমি শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত বর্ণনা করছি। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বেড়া কীর্তন লীলা নামক শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের গ্রন্থের মধ্য লীলার 11 পরিচ্ছেদের ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত। এবার আমরা 12 পরিচ্ছেদের সামরিটা আজকে পড়বো। 12 চ্যাপ্টার। 12 পরিচ্ছেদ नाम হচ্ছে गुंडीचा मंदिर मार्जन। गुंडीचा मंदिर मार्जन हिंदी में क्या लिखा है? 12 चैप्टर हिंदी में क्या किसी के पास हिंदी बुक नहीं है? मुझे पीडीएफ से पढ़ रहेगा, खोलना पड़ेगा। एनीवेज गुंडीचा मंदिर मार्जन वही होगा। सो ये 12 चैप्टर शुरू होने के आगे हम लोग श्रील प्रभुपाद मंदिर की सफाई सब एक बार श्रील प्रभुपाद को प्रार्थना करिए एक साथ। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, सो जस्ट हम लोग समराइज आज जो समराइज दिया हुआ है चैप्टर के बिगिनिंग में वो हम लोग आज वहीं तक करेंगे। শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত শশী ঠাকুর তার অমৃত প্রবাহ ভাষ্যে এই পরিচ্ছেদের কথা সারে বলেছেন। প্রভুজি হরে কৃষ্ণ। প্রভুজি আপনি ভক্তি সিদ্ধান্ত বললেন, বিনোদ ঠাকুর আছেন? ও সরি, মুক্তি বিনোদ ঠাকুর, সরি। তার অমৃত প্রবাহ ভাষ্যে উড়িষ্যার মহারাজা প্রতাপরুদ্র শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার অনেক চেষ্টা করলেন। শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু সমস্ত ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে রাজার মনোভাব মহাপ্রভুকে জানালেন। हरि बोल। अभी फिर से और एक बार कोई ट्राई किया? कौन ट्राई किया? अभी इस बार नित्यानंद प्रभु ट्राई किया। नित्यानंद प्रभु आ रहे, কিন্তু তবুও মহাপ্রভু রাজাকে দর্শন করতে সম্মত হলেন না। তখন নিত্যানন্দ প্রভু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর একটি বহির্বাস তার কাছ থেকে নিয়ে রাজাকে পাঠালেন। महाप्रभु का बहिर्वास लाइक कोई कपड़ा, यू नो, राजा को भेजा महाप्रसाद। আরেক দিন রামানন্দ রায় রাজাকে অনুগ্রহ করার জন্য মহাপ্রভুকে অনুরোধ করলেন। गुंडीचा मंदिर का सफाई पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, लेकिन नई वाली बुक है। हाँ, लेकिन ये सब भी है उस चैप्टर में, ये सब भी है, बाद में आएगा गुंडीचा मार्जन। हाँ ठीक है, हम पूछ रहे हैं, वो चीज पढ़ रहे हैं गुंडीचा मंदिर।
আর একদিন রামানন্দ রায় রাজাকে অনুগ্রহ করার জন্য মহাপ্রভুকে অনুরোধ করলেন। अभी इस बार कौन रिक्वेस्ट किया? রামানন্দ রায়। কিন্তু মহাপ্রভু তাতে সম্মত না হয়ে রাজার পুত্রকে আনতে আদেশ দিলেন। हरे कृष्ण। महाप्रभु बोला ठीक है, नहीं उनको नहीं, उनका बेटा क्यों लेके आओ। রাজপুত্রের কৃষ্ণ উদ্দীপক বেশ দেখে মহাপ্রভু তাকে কৃপা করলেন। ये राजा का पुत्र जो था, राजा प्रतापरुद्र के पुत्र, वो शायद भगवान कृष्ण ड्रेस करके आया। देखिए महाप्रभु ताके कृपा করলেন। তারপর ये सब इस चैप्टर में है। তারপর রথযাত্রার পূর্বে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার ভক্তদের নিয়ে গুন্ডিচা মন্দির ধৌত ও মার্জন করলেন। কারা কারা গুন্ডিচা মন্দির দর্শন করেছেন? गुंडीचा मंदिर हम लोग बाहर से किए प्रभु जी, और जब गए थे बंद था प्रभु जी, बंद था वो, तो हम लोग को जो ले गए थे वो बोले कि लॉकडाउन के बाद फिर बंद है प्रभु जी। हम लोग परिक्रमा में गए थे, इस बार बंद है। पहले गए बाहर से दर्शन किए प्रभु जी, बाहर नहीं किए। तो प्रणाम। लॉकडाउन का पहले गए थे तो दर्शन किए थे। सो रथ यात्रा के समय हम लोग को मालूम है जगन्नाथ देव का रथ जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाता है। यस यस, और वहां रहता है रथ यात्रा के दौरान, फिर उल्टा रथ के दिन वापस आ जाता है। तो ये गुंडीचा नाम कैसे आया अशोक प्रभु? जो उनका मौसी का घर था ना, क्या ऐसा कुछ। ओके, और कुछ इंद्राणी माता जी? ওনার মাসি যে ছিলেন তার নাম গুন্ডিচা ছিল, সেই জন্য মাসির নাম। আর কিছু এক্সট্রা কিছু বলবেন ভাগ্যরাধা মাতা জি? कंटक मुझे कंटक। ओ अच्छा अच्छा, ठंडा लेगे गए। अरे यस, विनीता अग्रवाल माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। राजा की वाइफ का नाम था शायद। हाँ, राजा इंद्रदुम्न वाइफ का नाम है गुंडीचा। वो भी पुरी का एकदम प्राचीन राजा इंद्रदुम्न, उनका वाइफ का नाम गुंडीचा है। और इंद्रदुम्न राजा का स्वप्न में आया था कि भगवान बोला था हम दारू ब्रह्म रूप में आएंगे। दारू ब्रह्म माने लकड़ी। और वैसे ही हुआ। अगले दिन महाराज देखा कि समुद्र में, पूरी समुद्र में एक बहुत बड़ा लकड़ी आया। और फिर जैसे स्वप्न आदेश हुआ था तो इंद्रदुम्न राजा ने विश्वकर्मा को बोला कि आप विग्रह बनाइए। तो वे उस मंदिर के अंदर जाया। इंद्रदुम्न महाराज ने बहुत बड़ा मंदिर बनाया था भगवान के लिए, वही जगन्नाथपुरी मंदिर। और विश्वकर्मा ने अंदर जाकर वो लकड़ी से विग्रह बनाना शुरू किया। लेकिन उनका क्या कंडीशन था? ये शायद हाँ, 15 दिन तो लगेगा बनाने में, लेकिन कोई बीच में अंदर घुसेगा नहीं मंदिर में। अगर बीच में कोई घुसा तो मैं उसी समय विग्रह बनाना बंद कर दूंगा। तो ऐसे कुछ हुआ। फिर अंदर बना रहे थे, लेकिन कुछ अंदर अगर 2-4 दिन तो बहुत आवाज आ रहा था, टक 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 करके, जो कारपेंटर बना रहे, विश्वकर्मा बना रहे। लेकिन शायद 7वां या 8वां दिन में आवाज आना बंद हो गया। तो इंद्रदुम्न महाराज का जो पत्नी था, उनका नाम था गुंडीचा। तो उनको लगा कि अगर अरे कुछ अशुभ नहीं हुआ ना मंदिर के अंदर में, क्योंकि आवाज नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बहुत विनती किया राजा को, प्लीज प्लीज देखिए क्या हुआ अंदर। तो राजा ने, महाराज ने खोला तो देखा विश्वकर्मा बना रहे। लेकिन फिर विश्वकर्मा ने उसी अधूरा रखकर अप्रकट हो गए। तो वही है जगन्नाथ रूप। एक्चुअली ये अधूरा नहीं है, ये पुण्य रूप है। भगवान कृष्ण को इस रूप में सबको दर्शन देना था। बहुत कृपामय रूप है ये जगन्नाथ रूप। तो फिर क्या हुआ? कहानी आता है ना प्रभु के हाथ पैर नहीं बना पाए। हाथ पर नहीं बना पाए, नहीं, ये एक्चुअली बाद में बता रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ? जगन्नाथ देव भगवान इंद्रदुम्न से बहुत प्रसन्न हुआ, इतना सुंदर मंदिर बनाया। तो जगन्नाथ देव ने इंद्रदुम्न को वरदान बोला प्लीज आस्क समथिंग, कुछ वरदान मांगो। तो महाराज इंद्रदुम्न ने क्या मांगा? निगुणानिलंबरी माता जी, पूनम जसवाल माता जी, संगिनी श्यामप्रिया माता, यस।
प्रभु जी उनके पास पुत्र नहीं था तो पुत्र प्राप्ति मांगा था। नहीं नहीं, महाराज इंद्रदुम्न ने बोला, हे प्रभु मेरे को कोई पुत्र ना हो, मेरे कोई संतान ना हो। सॉरी, पुत्र ना बोल गए थे, उल्टा बोल दिया। तो भगवान ने बोला, क्या महाराज आप क्या बोल रहे हैं? बोलिए हमको हमारे कोई पुत्र ना हो। क्यों? क्योंकि इतना सुंदर आपका सेवा हो रहा है, इधर सब भक्त लोग पांडा लोग मिलकर सेवा कर रहे हैं। हाँ, अगर मेरा कोई वंश में कोई पुत्र आ जाए तो क्या होगा मालूम नहीं, वो बाद में हमारे बाद वो इंचार्ज हो जाएगा और वो आपसे आपका सेवा करेगा, क्या करेगा, त्रुटि करेगा, इसीलिए प्लीज हमारा कोई उत्तराधिकारी ना हो। तो भगवान ने बोला तटस्थ। फिर क्या हुआ, गुंडीचा माता को ये बात सुनने को आया कि उनका हस्बैंड ने महाराज ने जगन्नाथ जी को भगवान को बोला कि उनका कोई संतान ना हो। और गुंडीचा माँ सुनकर बहुत गुस्सा हो गया, बोला नहीं हमको संतान चाहिए, आई वांट अ सन। महाराज क्या करे अभी? फिर जगन्नाथ देव ने गुंडीचा माँ को स्वप्न आया। स्वप्न में आकर क्या बोला, हे माँ, यू नो यू आर माई लाइक माई मदर, आप मेरा मौसी जैसा हो। माँ या मौसी जैसा, माँ मौसी एक ही है ना, माँ या मौसी जैसा हो। सो हर एक साल मैं वादा करता हूँ मैं आऊंगा आपके पुत्र रूप में और आपसे मैं सेवा ग्रहण करूंगा। तो वो 9 दिन जब रथ गुंडीचा में रहता है ना, उल्टे रथ के आगे तक, उस 9 दिन गुंडीचा माँ भगवान जगन्नाथ के लिए रंधन करके उनको भोग लगाते हैं, उनको खिलाते हैं। हरि बोल। और हमने सुना है, हमको जगन्मित्र जगन्नाथ वो जगबंधु प्रभु बताया कि वो जो प्रसाद होता है बहुत सुपर टेस्टी होता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको कुछ नाम है, उसका नाम है कुछ अगर प्रसाद। वो बहुत स्पेशल प्रसाद है, वो जो 9 दिन बनता है गुंडीचा मंदिर में जब रथ वहां रहता है, समझ रहे आप लोग? बहुत स्पेशल प्रसाद, वो बहुत कम लोग को मिलता है, भाग्यवान को मिलता है वो प्रसाद गुंडीचा मंदिर में। ओके, तो ये है बैकग्राउंड गुंडीचा। राजा प्रताप रुद्र के कोई थे प्रभु वो पहले वाले राजा? मालूम है, इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रभु जी अभी भी लगता है वैसा ही प्रसाद? हाँ, अभी का तो बात कर रहा हूँ कि बहुत सुपर। अभी गुंडीचा माँ कोई नहीं होंगी? हाँ जी, अभी तो गुंडीचा माँ नहीं होंगी। हाँ, लेकिन सब नहीं, उन्हीं के ओर से सब भक्त लोग रंधन करते जगन्नाथ के लिए। लेकिन हम लोग गए थे तो प्रभु जी आनंद बाजार की तरह ही प्रसाद वहां भी मिल रहा था। हाँ, लेकिन आप लोग कब इस दौरान गए थे जो हम बता रहे हैं? वो 15 दिन 2-3 साल पहले प्रभु जी गए थे ना, तो यही 9 दिन में गए थे गुंडीचा में, दर्शन किए थे भगवान का। हाँ, ओके। तो वहाँ प्रसाद भी लिए थे। और आपको याद भी है कि वो ऐसे ही था नॉर्मल? अब ये इतना तो नहीं पता, बोले ना सबको नहीं मिलता प्रसाद, किसी किसी। तो आप भाग्यवान है कि आपको मिला। ओके, तो माता जी बोले आनंद बाजार के जैसे वहां पर भी हो गया था आनंद बाजार। मौसी के हाथ से और मौसी के लड़का लोग के हाथ से अंतर तो हो ही जाएगा। नहीं, एकदम नहीं, कोई अंतर नहीं है प्रभु, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि गुंडीचा माँ जिनको जाके भार दी गए, हाँ, दे आर बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव, प्रामाणिक प्रतिनिधि है गुंडीचा माँ का। सो उसमें कोई फर्क नहीं होगा। जैसे शिल प्रभुपाद 10 नंबर स्कंद तक हम लोग तात्पर्य लिखा, उसके बाद शिल प्रभुपाद अपने धाम वापस चले गए और 11 और 12 वाला जो स्कंद है श्रीमद् भागवतम का, वो शिल प्रभुपाद के शिष्य लोग लिखा है। शिल प्रभुपाद के शिष्य लोग शिल प्रभुपाद से कोई कम नहीं है, अभिन्न है। They are as good as शिल प्रभुपाद, because in the sense they are not शिल प्रभुपाद, but वो शिल प्रभुपाद का आदेश को ये जैसे भगवान का शक्तावेश होता है, as it is, वैसे भी शिल प्रभुपाद जिनको शिष्य लोग को आदेश दिया है और उन लोग जो कार्य किया है, it is as good as शिल प्रभुपाद किया है। There is no difference, कोई फर्क नहीं है। शिल प्रभुपाद का जीवीसी शिल प्रभुपाद ही है। ओके, इसीलिए तो अक्षय पात्र लोग हम लोग से अलग हो गया। उन लोग शिल प्रभुपाद को मानते हैं, लेकिन शिल प्रभुपाद का शिष्य लोग को स्वीकार नहीं करता, अस्वीकार करता है। Okay. लेकिन मंदिर में इतना बढ़िया दर्शन नहीं हुआ था जहाँ जितना बढ़िया दर्शन प्रभु जी गुंडीचा मंदिर में हुआ था। एकदम सामने से भगवान का दर्शन हुआ था। प्रभु जी जो बाहर में होते हैं वही गुंडीचा है और मेन अंदर है, मतलब जो बाहर में एकदम
एग्जिट गेट के पास ही एक रहता है, वो गुंडीचा है क्या? गुंडीचा तो मंदिर का नाम है, गुंडीचा है माने क्या? प्रभु जी पूरी में दो, एक अंदर मेन विग्रह रहता है और एक बाहर में गेट की तरफ। वो अलग मंदिर नहीं, वो अलग मंदिर है। कितना 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर दूर में है। हाँ यस प्रभु जी, 5-6 एग्जैक्ट मालूम है कितना किलोमीटर, लेकिन जगन्नाथ जो रथ जाता है ना रथ यात्रा के दिन, रथ खींच के गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं। प्रभु 3 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर होगा। ओके ওকে। তারপর রথযাত্রার পূর্বে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার ভক্তদের নিয়ে গুন্ডিচা মন্দির ধৌত ও মার্জন করলেন। ओके, इट्स जस्ट 1 डे बिफोर रथ यात्रा, बहुत मार्जन और गुंडीचा मंदिर सब देखिए, क्योंकि जगन्नाथ आएंगे, भगवान जगन्नाथ आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं। तो महाप्रभु और महाप्रभु का जो टीम था सब गुंडीचा मंदिर अच्छा से सफाई किया। वो इस चैप्टर में डिटेल में आएगा। इस माता जी हाँ तो माता, एक बार जब पहले रोड में गीता क्लास होती थी ना कोविड के पहले, तो इस श्रीला बिहारी माता जी ने हम लोग को पहले दिन सबको बुलाया, बोले कि आज पूरा मार्जन करना यहाँ से करना। फिर वो माता जी बोली जिसके मतलब हर के जैसे विग्रह नहीं है, जगन्नाथ जी की फोटो भी है मंदिर में, सब अपने अपने घर में आज के दिन मार्जन किया कीजिए। मतलब डेली हमेशा हर साल रथ यात्रा के पहले दिन पूरा मंदिर सफाई करके जगन्नाथ जी सबके मंदिर में आती। माता जी सो ये गुंडीचा भक्त ये इस्कॉन मंदिर में भी मार्जन होता है उस दिन। मंदिर में मार्जन होता है, सब भक्त लोग आता है और इस्कॉन मंदिर भी मार्जन करता है। ये है पूरा सफाई और रंगाई सब होता है प्रभु जी। हाँ, रंग भी होता है। তারপর রথযাত্রার পূর্বে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার ভক্তদের নিয়ে গুন্ডিচা মন্দির ধৌত ও মার্জন করলেন। यस, पढ़िए कौन पढ़िए कंटिन्यू कीजिए माता जी। कोई भी एक सेकंड। इंद्राणी माता जी कहाँ गए? अभी क्या पढ़ाई हो रहा है माता जी? अभी हम और स्टार्ट किए हैं क्लास अभी। अध्याय 12 माता जी दूसरी बुक निकाले, पार्ट दूसरी बुक जो कल हो रही थी ना उससे दूसरी, इसके बाद वाली बुक क्या? हाँ उसके बाद वाली भाग 3। তারপর ইন্দ্রদূত সরোবরে স্নান করে উপবনে সমস্ত বৈষ্ণবদের নিয়ে প্রসাদ সেবা করলেন। पहले मंदिर क्लीनिंग किया, उसके बाद किया क्या, इंद्रदुम्न सरोवर गए आप लोग, वहां सब स्नान किया, बिकॉज मंदिर मार्जन किया तो थोड़ा उनका शरीर में धूल आ गया। तो महाप्रभु एंड टीम फिर इंद्रदुम्न सरोवर में स्नान किया और उसके बाद उसके पास में ही जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है, समस्त वैष्णवদের সঙ্গে নিয়ে প্রসাদ সেবা করলেন। उपवन माने गार्डन में जाकर सब प्रसाद ग्रहण किया महाप्रभु एंड टीम। मंदिरे मार्जन करार समय कोनो गौरीय भक्त महाप्रभुर चरणे जल दिए সেই জল পান করায় কৃষ্ণ প্রভুজি প্রেম রহস্যের উদয় হলো। তো মহাপ্রভু কোথায়? আমার তো গৃহ লেখা রয়েছে, उस समय গৃহের মধ্যে গিয়ে প্রসাদ সেবন করলেন। কোথায়? গৃহে বলেছে, গার্ডেন তো নেই। উপবনে লেখা আছে বৈষ্ণবদের সেবা হয়ে যাওয়ার পর স্বরূপ দামোদর আদি সজ্জনগণ গৃহের মধ্যে প্রসাদ সেবা করলেন। আচ্ছা, আমি তো দেখছি তারপর ইন্দ্রদুম্ন সরোবরে স্নান করে উপবনে সমস্ত বৈষ্ণবদের নিয়ে প্রসাদ সেবা করলেন। हिंदी में ऐसा ही लिखा हुआ है प्रभु जी जो आप बोल रहे हैं। सेकंड सेंटेंस, सेकंड पैराग्राफ है सेकंड सेंटेंस। ও আচ্ছা, আমি একদম লাস্ট লাইনে পড়ছি, একদম লাস্ট লাইন। আচ্ছা ঠিক আছে। तो जब मंदिर मार्जन करा तो कोई महाप्रभु का चरण का पानी पी लिया, उनको डायरेक्ट कृष्ण प्रेम हो गया, हरि बोल। আবার অদ্বৈতাচার্য পুত্র শ্রী গোপাল মূর্ছিত হলে তার মূর্ছা ভঙ্গ হয় না দেখে মহাপ্রভু তাকে চেতন করলেন। ओके, तो श्री गोपाल शायद मूर्छित हो गया था बीच में, ये डिटेल आएगा ये सब चैप्टर में, ये चैप्टर में। प्रसाद सेवार समय अद्वैत आचार्य प्रभु एवं नित्यानंद प्रभुर मध्य प्रेम कलह হয়েছিল। हरे कृष्ण। फिर से जैसे नवद्वीप में हुआ था, आप लोगों को याद होगा, वैसे प्रेम का वार्तालाप हुआ था, होगा फिर से। अद्वैत आचार्य प्रभु বলেছিলেন অজ্ঞাত কুলশীল নিত্যানন্দের সঙ্গে একসাথে ভোজন করা গৃহস্থ ব্রাহ্মণের কর্তব্য নয়। হরে কৃষ্ণ। তার উত্তরে নিত্যানন্দ প্রভু বলেছিলেন অদ্বৈত আচার্য অদ্বৈত সিদ্ধান্তে নিপুণ,
তাই তার মতো অদ্বৈতবাদীর সঙ্গে একত্রে বসে ভোজন করলে ভদ্রলোকের মনোভাব কি রকম হয়ে যেতে পারে বলা যায় না। सो दोनों एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, ठीक है, अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु। এই উভয় প্রভুর কথারই অনেক गुरु रहस्य আছে। ये हालांकि लग रहा है कि एक दूसरे को मजाक कर रहा है, लेकिन ये एक एक में बहुत तत्व छुपा हुआ है, वो सब इस चैप्टर में आएगा। তা কেবল ভক্তরাই, ভগবত ভক্তরাই বুঝতে পারেন। বৈষ্ণবদের সেবা হয়ে যাওয়ার পর স্বরূপ দামোদর আদি সজ্জনগণ গৃহের মধ্যে প্রসাদ সেবা করলেন। जैसे जो सर्विंग टीम है लास्ट में प्रसाद ग्रहण किया, जो सर्विंग कर रहा था पहले। শ্রীনব যৌবনে দর্শনের দিন ভক্তদের নিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জগবন্ধু দর্শনে বিশেষ প্রীতি লাভ করলেন। শ্রীনব যৌবনে দর্শনের দিনে, आई डोंट नो व्हाट इज इट, हिंदी में क्या लिखा है लास्ट सेंटेंस? जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनवरसर के बाद जगन्नाथ अच्छा विग्रह देखा तो परम आनंदित हुए। ओके, सो ये सब के बाद नवयौवन है प्रभु, नवयौवन, नवकलवर, नवयौवन, हाँ वही नवकलवर, नवयौवन। ओके, मतलब 15 दिन का अनवसर होता है ना, जो उसके बाद जो जगन्नाथ जी का दर्शन किए तो बहुत परम आनंदित हुए। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরে, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরে, হরিয়া সবে বল হরি হরি, बदन भरिया बोलो सब हरि हरि, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। चैतन्य चरितामृतम की जय।